Yes, Monica, proceed. Mental health was the most neglected topic before the pandemic. People used to say, like, seriously, we need to talk about this, even if they used to suffer from the mental illness. Due to COVID-19 outbreak and due to the lockdown and social isolation, people's anxiety, fear increased in access, and also due to the increased suicidal rates in India uh, among the film star and the youngster, everywhere mental health was in trend. This year, India faced the three major issues. First was the COVID-19 outbreak, second was the economic crisis, and third was the mental health problem. So I guess it's clear to everyone that why we are here and why we need to talk about this topic. This year, WHO have given the theme mental health for all. So may I please invite Mr. Narendra Singh, Vice President of the SNA and BSc Nursing fourth year student to unfold the theme. हेलो गुड मॉर्निंग सर तो स्लाइड शेयर करना है Yeah, you can do. वो शेयर स्क्रीन ऑप्शन यस है सर नीचे, उसी से कर लो. Yes, कोई इशू नरेंद्र? यस सर स्टार्ट गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम गुड मॉर्निंग टू टीचर्स गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स माय नेम नरेंद्र सिंह पडियार BSc nursing fourth year student. So my topic is the unfolding the theme of the World Mental Health Day. The COVID-19 pandemic has brought great disruption and immense challenges all across the globe. Uncertainty and major changes to the way we live our lives are having a considerable impact on our mental health. There has also been no shortage of coverage on staying mentally healthy, why it's important, how it can be done, and how we can support one another. The simple act of asking loved one, how are you, कैसे हैं आप, is no longer underestimated in some ways. COVID-19 has broken barrier and created more awareness on mental health. We must ensure that this conversation continue in the post of new normal. This year, the theme of Mental Health Day is Mental Health for All, Investment Greater Access. Define mental health. जैसा कि हम सब ने पढ़ रखा है कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो मेंटल हेल्थ इज द स्टेट of well-being in which an individual realizes his or her own ability, can cope with normal stress of life, can work productively, and it is able to make the contribution to his or community. Introduction. World Mental Health Day, a program of the World Federation for Mental Health, annually raise awareness with the global community about the mental health challenges, gap, and priorities through the collaborative and unifying voice aimed taking action, addressing and creating lasting changes in the world where we need to restore the dignity of all living with mental health need. The mental health consequence COVID-19 suppressed by the already, जैसे कि हमें पता है कि पहले से ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफी कम काम हो रखे हैं हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड भी. उसके बावजूद ये जब कोविड-19 और आ गया तो इससे ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि काफी जो लोग हैं अभी भी घरों में रहने की वजह से या फिर काम
उनके काम चले जाना या उनका जो वर्क कर रहे थे वो वर्क से हट जाना, या जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे थे उनको जो फ्यूचर का टेंशन है कि भाई उनके अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ रिलेटेड, ऐसा काफी कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे काफी केसेस जो है कोविड-19 की वजह से बढ़ रहे हैं। और पहले से भी काफी केसेस थे जिस पर हमारी जो गवर्नमेंट है या जिस वर्ल्ड है वो काम कर रहा है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, सुसाइड, जो पहले से भी काफी ज्यादा था और कोविड-19 की वजह से और ज्यादा बढ़ गया। The health landscape in which the number of people living living with depression and or anxiety increased by the nearly 50% from 416 million to 615 million WHO in 2016. We know that the mental neurological and substance use disorder exert a high toll of health outcome, accounting for 30% of the total global burden of disease. WHO in 2012 जो बताया था 1% in every 4 will be affected by the mental disorder at some stage of their life. The treatment gap remains large, with 15% of people with mental disorder in high income countries and 85% of persons in low and middle income countries having no access to treatment. In 2012 by WHO की जो रिपोर्ट थी उसके द्वारा fragile health system have not been able to address or cope with the large treatment gap and need for mental health care. In India, the National Institute of Mental Health and Neuroscience is a premium medical institute in Bangalore, India. निवास रिपोर्ट कहता है कि 10 में से 1% जो इंडिया में उसके मेंटल प्रॉब्लम है और 20 में से किसी 1% के हैं डिप्रेशन। जबकि हम क्या कहते हैं कि हमारे तो पुरखों को भी कभी ये डिजीज कंडीशन नहीं हुआ, हमको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हमें कैसे? तो ये जो आंकड़े हैं इससे हम साबित कर पाते हैं कि भाई इंडिया के अंदर भी काफी केसेस है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि काफी वर्कलोड रहता है और वर्कलोड है, फैमिली का लोड है और काफी आसपास से रिलेटेड कम्युनिटी है, हम लोग ज्यादा अपने काफी इससे रिलेटेड सोचते हैं, इससे रिलेटेड डिप्रेस होना और एंजाइटी होना स्वाभाविक है। तो इस तौर पे हमारे देश के अंदर भी मेंटल हेल्थ पे काम होना जरूरी है। This year is call of the mental health for all, greater investment, greater access. This year the call to action, greater investment in mental health has to be headed and cannot be ignored in the current COVID-19 pandemic environment. It is unquestionable that mental health is human right, and thus now more than ever it is time of mental health for all. Quality and accessible mental health care and undeniable right and part of the foundation for universal health coverage. Every nation, every voice need to move and call for greater investment in mental health. Why we study like for investment, because of the हमारे देश के अंदर भी जो हमारा हेल्थ बजट होता है उसका भी काफी 10% या 5% जो है वो केवल मेंटल हेल्थ पर खर्च होता है, और उसका भी जो 5% और 10% उसका भी 70% जो है वो हमारी क्लिनिकल जो मेंटल हेल्थ होता है ना, क्लिनिकल से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है उस पर चले जाता है, और 20% जो रहता है इससे रिलेटेड प्रोग्राम रिलेटेड ये सब होता है। मतलब कि ये 20%, 5% का भी 20% कितना कम हो गया ये आप सब देख सकते हैं। तो हमारे देश में काफी कमी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट और इससे रिलेटेड अवेयरनेस से रिलेटेड, तो हमें इससे रिलेटेड काम करना हमारे तरफ से चाहिए। Our call in a simple one, let us the hold hand and unify our voice, moving the mental health waiver agenda for increased focus on access to mental health, and thereby making mental health and reality for all, everyone, everywhere. Mental health led invest. Countries spend less than 2% of their health budget on mental health, with 80% of the expenditure going to mental health hospital. Furthermore, international development assistance for mental health estimated to be less than 1% of all development assistance for health. This is despite the fact that evidence-based case for depression and anxiety alone bring the US $5 return to investment for every one spent. Meanwhile, the return of the evidence-based drug dependence care may be as high as $6. अप्लाई दिस ईयर की क्या क्या इन्वेस्ट है और क्या क्या इसके मतलब हमारे जो एम रहेंगे वो है अप्लाई अ बोल ऑफ सोसाइटी अप्रोच टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर द मेंटल हेल्थ, इंश्योर द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी मेंटल हेल्थ एंड साइकोसोशल support recovery and COVID-19 by building mental health services fit in the future.
कोविड-19 का इस साल ऐड हुआ क्योंकि इससे रिलेटेड काफी कंडीशनें उभर कर आ रही है। इस वजह से इस साल की जो थीम है उसके अंदर भी इस एम को भी इंक्लूड किया है। थैंक यू। मैं ऑन कर रहा हूँ वीडियो। Thanks to the Vice President for unfolding the theme. This year, SNE has conducted the 3 competition on the World Mental Health Day, which are the poster competition, sports competition, and the poem competition. So may I please invite organizers of the poster competition to kindly display the posters to the audience. This poster was made by Ms. Arpita Malik from BSc Nursing third year. And this poster was made by Vibhu Arpita from BSc Nursing first year. Thank you so much. As it's a saying that precaution is better than cure, and for us, for the medicals, it is prevention is better than cure. And we all know that prevention comes through the awareness. So may I please invite Ms. Veera Jyoti from BSc Nursing third year to aware our audience regarding this topic, that is the mental health for all. So Veera Jyoti is here with her presentation. Good morning to one and all present here. I'm here today to share few information about mental health. So first we are going to see what is mental health. Mental health क्या होता है? Mental health ये है एक सक्सेसफुल मेंटल एक्टिविटी को मेंटेन करना। और मेंटल एक्टिविटी क्या है? हम अपनी डेली लाइफ में इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? हम डेली लाइफ अपने हर एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल जो भी डेली एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करना और सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज कर पाना, उसको बैलेंस रखना और अपने आप से खुश रहना और अपनी लाइफ को जो भी एक्सपीरियंस है उसको एक्सेप्ट करना, उससे कुछ इंफॉर्मेशन गेन करना, ये मेंटल हेल्थ है। इससे वो क्या होता है, मेंटल हेल्थ अगर जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए हम इम्पोर्टेंस देते हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए हमें चेकअप करना होता है, कुछ उसमें पेन होता है तो उसको चेकअप करते हैं, जैसे ही इसमें भी कुछ क्या होता है, हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे टेंशन है, ऐसे हमें पता चलता है कि जिससे हम मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। पर एक अच्छा मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना भी जरूरी होता है, तभी वो एक इंडिविजुअल क्या है अपने लाइफ से और अपने सराउंडिंग से हैप्पी रहेगा। जो मेंटल हेल्थ है वो किसको अफेक्ट करता है, अगर वो ठीक नहीं है, हम अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे तो वो हमारी थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स और वो हमारी डेली एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करेगा और वो डिटरमाइन करेगा, हमारी मेंटल हेल्थ ही हमारी जो स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए मदद करता है। और हमारी चॉइसेस गुड और राइट और रॉन्ग के बीच में हम जो चॉइस करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच ये हमारी लाइफ एक्सपीरियंस और गुड मेंटल हेल्थ हमें हेल्प करता है उसको भी राइट चॉइस मेक करने के लिए अपने लाइफ में। और हर एक इंडिविजुअल में ये मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नहीं है, ये नहीं है कि हर सिर्फ बड़े लोगों को इम्पोर्टेंट है, छोटे में से नहीं, हर हमारी लाइफ से जब हम बॉर्न होते हैं डेथ होने तक हमारी पूरी लाइफ के द्वारा ये मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर एक इंडिविजुअल
बच्चे हैं तो स्कूल में उनको स्ट्रेस हो सकता है, टीनेज में आते हैं, पीयर ग्रुप्स में स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बूढ़े होते हैं काम करने में, जैसे एज होते जाता है काम करने के एरिया में, ऐसे हर एक जगह पे हमें स्ट्रेस हो सकता है, या फिर हमें अच्छा नहीं रहा हो या अच्छा भी लग सकता है। तो ये सारी क्या है, ये सारी जो सिचुएशंस हम हैंडल कर देखते हैं, एक्सपीरियंस हमें गेन करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करता है। और ऐसे ही वरी करते रहने से भी हम क्या नहीं कर सकते, अपने लाइफ को अच्छा मेंटेन, हमारी गुड मेंटल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढना जरूरी होता है। और अगर हम सब हैं यहाँ पे, तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ गुड है कि नहीं। तो ऐसे हम देख सकते हैं, कुछ साइंस है जो हम अपने आप को हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या हम गुड, हमारी मेंटल हेल्थ सही है कि नहीं। तो इसमें साइंस देखेंगे तो हम फर्स्ट है हमारी अपने आप से, हमारी लाइफ से कुछ सेटिस्फेक्शन रहना, सेटिस्फाइड होना। और दूसरी है engage with मीनिंगफुल एक्टिविटी। तो कोई भी हम काम करते हैं, डेली एक्टिविटीज भी हो, कोई भी हम वर्क, जॉब, प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, कोई भी हम जॉब करते हैं, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका कुछ तो शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है या लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है। तो एक्टिविटी ऐसी मीनिंगफुल हम कर रहे हैं, तो हम अच्छे गोल के लिए हम कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ गुड है करके डिसाइड कर सकता है। और हम जो भी हमारी पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स है, उसको हम अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं, उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को, तो वो भी एक साइन है। नेक्स्ट, अपने आप को कंट्रोल करना। जब हम कुछ करते हमें गुस्सा आ जाता है अचानक, हो सकता है ऐसे सिचुएशंस में, तो फिर भी उस सिचुएशन हम अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने स्ट्रेस को, टेंशन, एंग्री, जो भी फीलिंग्स, इमोशंस को और बिहेवियर, हमारी बिहेवियर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम हैंडल कर पाएंगे, तो भी वो सेल्फ कंट्रोल होगा, तो वो एक गुड साइन है। फॉरगिव अदर्स। हम दूसरों का, हमारे साथ किसी ने गलत किया तो भी उसको माफ करना जरूरी है। अगर हम उनको फॉरगिव नहीं करेंगे, मन में रखते रहेंगे उसने ऐसा कर दिया, तो उससे क्या होता है, अपने आप को हम एक नेगेटिव फीलिंग दे रहे, दूसरों को तो हम दोषी मान रहे हैं, उनको फॉरगिव नहीं दे रहे, फॉरगिव नहीं कर रहे, सॉरी। तो उससे क्या होता है, अपने आप को भी हम क्या नहीं कर पा रहे, उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो फॉरगिव, हर एक जगह पे हमें दूसरों को माफ करना भी जरूरी होता है। और ऑप्टिमिज्म, लाइफ में हम जैसे सोचते हैं वैसे ही सब कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय अगर नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है, तो हमें पॉजिटिवली लेना है। हर एक इंसिडेंट, हर एक सिचुएशन, हर एक एक्सपीरियंस हमें क्या देता है, एक लेसन हमें टीच करता है हमारी लाइफ। और उसमें होप भी रखना है अपनी लाइफ से। और टॉलरेंस, सहनशीलता। तो टॉलरेंस, कोई भी सिचुएशन है तो टॉलरेट करना है। अगर कोई ज्यादा हमें गलत ठहरा रहे, फिर भी टॉलरेट करना जरूरी होता है। और कोई पेन जैसे टॉलरेट करने के लिए बोलते हैं, थोड़ा टॉलरेट करने की कैपेसिटी अपने आप आ जाती है, वैसे ही स्ट्रेस को भी या एंग्री को भी, थोड़ा एंगर को भी थोड़ा टॉलरेट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। ग्रेटफुलनेस, अपने लाइफ से अप्रिशिएट करना, अपने लाइफ में जो भी है, अपने लाइफ को अप्रिशिएट करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, तभी हम क्या कर सकते हैं, अभी एंथुसियास्टिकली हम अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा अपने लाइफ में थोड़ा जोक भी होनी चाहिए, हंसी मजाक, तभी हम खुश रह पाएंगे। तो ये सब क्या है, गुड मेंटल हेल्थ का एक साइंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या है, हमारी लाइफ में कोई भी, हम जैसे हमने देखा गुड मेंटल हेल्थ है तो एक एक्टिविटी, अपने डेली लाइफ एक्टिविटी को करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, अपने रिलेशंस को मेंटेन रख पाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाते हैं। अगर इसमें से कोई भी डिसबैलेंस हो रहा है, कोई स्ट्रेस के कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे, या कोई भी फिजिकल इलनेस के कारण हमारी मेंटली हम अफेक्ट होते हैं,
इम्पेयर्ड फंक्शनिंग, जैसे हमारे रिलेशनशिप मेंटली हम बैलेंस नहीं रख पाते, ऐसे कोई भी सिचुएशंस के कारण क्या होता है, हमारी थॉट्स चेंज होती है, उसके कारण डिसबैलेंस होके फिर हमारे बिहेवियर में चेंज आ सकता है। अगर ऐसे चेंजेस हमारी थॉट्स, मूड्स, फीलिंग्स में या बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है, उसको हम क्लिनिकली क्या कर रहे हैं, डायग्नोज करके उसको मेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हम फिजिकल इलनेस को भी हर एक चीज को डायग्नोज करके उसको कैटेगराइज करते हैं, वैसे ही एक बिहेवियरल या मेंटल डिसऑर्डर्स भी है। हम फिजिकली देख तो सकते हैं हर चीज को, अगर फिजिकली कोई इलनेस है महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उसको, वो हमें भी दिखता है और दूसरों को भी दिख सकता है। अगर पर मेंटल इलनेस क्या है, किसी को भी पता नहीं होता डायरेक्टली, वो स्टार्टिंग स्टेज में भी पता करना बहुत मुश्किल होता है। किसी किसी को अगर आइडेंटिफाई करते हैं, अगर इसका नॉलेज होगा तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसका नॉलेज होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है कॉसेस। इसका कॉसेस क्या है, क्यों इलनेस किस कारण से हो रहा है। एक तो पहले जेनेटिकली वो किसी का भी दोष नहीं मान सकते, हेरिडिटरी हो सकता है, और फैमिली हिस्ट्री के कारण हो सकता है, और बायोलॉजी। नेक्स्ट एनवायरनमेंट, उनका एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जो स्ट्रेसफुल हो, कोई अंडरस्टैंड करने के लिए उनको टाइम नहीं दे रहा हो, कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना डेली एक्टिव कैरी आउट नहीं कर पाया, उसका बेसिक नेसेसिटी वो फुलफिल नहीं है उसका, तो उस समय एनवायरनमेंट से उसका हो सकता है। और लाइफस्टाइल, उसका लाइफस्टाइल हैबिट्स, ऑर्गेनिक कंडीशंस, और सोशल पैथोलॉजिकल लाइफ एक्सपीरियंस से। अगर चाइल्डहुड में, क्योंकि कोई भी चाइल्ड को पता नहीं होता गुड मेंटल हेल्थ क्या है नहीं है, पर उसका जिम्मेवारी तो पेरेंट्स के ऊपर होता है। वैसे अगर उनको केयर करना पेरेंट्स का है, तो उनका गुड मेंटल हेल्थ डिपेंड होता है हर एक इंसान का चाइल्डहुड से, अगर उनके पेरेंट्स और सराउंडिंग्स उनको केयर कर रहे हैं, अच्छा केयर दे रहे हैं। और फिनेंशियल भी, आजकल अभी सिचुएशन जो कोरोना के वजह से जो हुआ है, इसके कारण बहुत सारे लोगों का फिनेंशियल भी है, फिनेंशियल स्टेटस भी डाउन है या बैलेंस नहीं है, तो उससे भी क्या है, टेंशन होना शुरू हो जाता है इस स्ट्रेस के कारण। कभी कभी कोई काम करते रहते हैं, मोबाइल आजकल आ गया, मोबाइल ज्यादा है इस्तेमाल करते हैं, रात में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से नींद नहीं हो रहा है, अगर स्लीप नहीं हो रहा है तो अगले दिन का हमारी डेली एक्टिविटी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो रहा है उसके कारण। ऐसे कंटिन्यूस अगर एक हैबिट ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अगर एड्रीनल एग्जाम्पल, एक एड्रीनल हार्मोन्स का, कॉर्टिजोल, इसका कोई बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, तभी भी हमारी क्या इमोशंस चेंज होती है उसके कारण, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। अगर दूसरा ब्रेन इंजरी, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया उसके कारण ब्रेन इंजरी हुआ है, तो उसके कारण मेमोरी लॉस हो सकता है, या कुछ और वो अपने एज से, बायोलॉजिकल एज से नीचे भी, जैसे बड़े हैं 20 एज का है, एक्सीडेंट होने के बाद अगर बचपन के एज वो है, ऐसे बन जाते हैं, तो ऐसे भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर मदर प्रेग्नेंट है उस समय अगर वायरस या टॉक्सिक केमिकल्स एक्सपोजर हुए हैं, तभी भी मेंटल हेल्थ जो डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का, तो उसमें उसकी मेंटल ब्रेन न्यूरल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा, तो उससे क्या होता है आगे जाके उसका मेंटल इलनेस भी होने की चांसेस है। हम अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं, उससे हमारी मूड्स चेंज होती है, तो मूड्स चेंज हो रहा है, मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और कैंसर पेशेंट्स एग्जाम्पल, मेडिकल कंडीशंस में उस समय जब डेथ लास्ट स्टेज में उनको पता चल रहा है, तब उनको क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकली वो अफेक्ट होते हैं। अभी उनको पता रहता है कि कुछ ही दिन है मेरे पास, ऐसे कारण से भी वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट होते हैं। और
अगर उनको कोई बच्चा है, इंडिविजुअल है, बचपन से अगर अकेला है, कोई उसको केयर नहीं कर रहा है, लोनली फील अपने लाइफ से भी बचपन से वो अकेले रह के अपना खुद का काम करके, या उसको बिना कोई किसी ने मदद नहीं किया ऐसे आता है, तभी उसको उसका मेंटल गुड मेंटल हेल्थ मेंटेन नहीं होता है। तो किसी का हेल्प करना भी जरूरी होता है इससे। और सिम्टम्स क्या, अगर पर्सन्स है, इंडिविजुअल्स है, जैसे हम नर्सेस है, तो हमें अपने आसपास के लोगों को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ साइंस से, जिस सिम्टम से जो हाँ उनको थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर शुरू, मेंटल इलनेस होना स्टार्ट हुआ है, या उनको है आइडेंटिफाई करना भी जरूरी होता है। तो जैसे कि लो मूड, जब भी देखे उदास रहते हैं, और सोशल एंजाइटी है, ग्रुप के साथ, किसी के अपने ग्रुप पीयर ग्रुप्स के साथ, या क्या कोई भी सोशल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सबके सामने बात करने से डर है, फोबियाज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज है, और इंसोम्निया, ठीक से स्लीप नहीं लेना, नींद नहीं आ रहा है उनको, तो उससे हो सकता है चेंजेस। फियर है, फोबिया, किसी से भी डरना, हर चीज से डर लगना। इमोशनल ईटिंग, कभी ज्यादा खुश रहते हैं ज्यादा खा लिया, कभी हम उदास रहते हैं, कभी टेंशन में रहते हैं या एंजाइटी है, तब खाने का मन नहीं लगना, तो अपना फिजिकल हेल्थ को भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे चेंजेस होना। नर्वसनेस, ये नेचुरली हर किसी को नर्वसनेस तो होता ही है, पर अधिक लिमिटेड लेवल से ज्यादा, अगर ज्यादा नर्वस है, हर एक छोटी बात से हर एक छोटी बात को लेकर अगर नर्वस हो रहे हैं, तो वो एक डिसऑर्डर, वो ये छोटे छोटे डिसऑर्डर्स है। दूसरी, एक्सेसिव एंजाइटी होना, वरी करना, हर चीज से परेशान हो जाना, छोटी बातों से, या फटीग, ज्यादा हम अपने आप को थकावट महसूस करना, रेस्टलेसनेस, एक जगह पे नहीं रह पाते, क्या करना है ऐसे, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, अटेंशन, कुछ भी काम करते तो उसको अटेंशन नहीं दे पाते हैं, कोई बात करते तो उसमें अटेंशन नहीं दे पाते हैं, कोई चीज पढ़ने के लिए, जैसे स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है। और इरिटेबिलिटी, कोई भी बात किसी को भी अगर ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसे एक शब्द ऐसा आ रहा है, या कोई भी एनवायरनमेंट में कुछ ट्रिगर फैक्टर्स है, उसे इरिटेट होना बार बार, अगर एक फैक्टर है तो उससे बार बार इरिटेट होते हैं, तो बार बार इरिटेट होने से क्या वो मेंटल डिसऑर्डर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, अच्छे से सो नहीं पाते हैं ठीक से, एक लॉन्ग, हम फुल स्लीप बोलते हैं 7 to 8 आवर्स, तो वो नहीं जैसे नींद नहीं ले पाते हैं। Veera, ऐसा one more minute, please. You ऐसा take too much time. देन प्रिवेंटिव मेजर्स है, अच्छे से हम अपने फीलिंग्स को दूसरों से शेयर करना है, अच्छे से ओपनली, जितना हो सकता है हम अपने पेरेंट्स से, मैक्सिमम अपने पेरेंट्स से अगर हम शेयर कर लेंगे अच्छा रहता है। कीप एक्टिव, जब म्यूजिक या कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, अच्छे से हेल्दी फूड खाना है, और एक ब्रेक लेना है कोई भी एक्टिविटी के बीच में, हेवी एक्टिविटी के बीच में। ड्रिंक करना भी है तो उसको एक लिमिट में हमें रखना है। और हेल्प, अगर आपको मदद चाहिए तो दूसरों से बात करनी है खुल के, अगर आप बात नहीं करेंगे आपको दूसरों को पता नहीं चलेगा आपको हेल्प चाहिए करके। और दूसरों को भी हमें केयर करना जरूरी है, और अपने आसपास के लोगों से टच में रहना है, बात करना है फ्रीक्वेंटली जब आपको टाइम मिले। और जो भी हम करते हैं वो अच्छा, कुछ एक्टिविटी अपने जो लेवल पे है उसको अच्छा करना है, और अपने आप को भी हमें एक्सेप्ट करना है, लाइफ को भी एक्सेप्ट करना है, और दूसरों भी जैसे सोचते हैं उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट करना है। और कुछ राइट्स है, हमें नहीं पता मेंटली इल पेशेंट का, ये है वो अपना कपड़ा खुद जो भी है वो वियर कर सकते हैं, वो पहन सकते हैं अपना कपड़ा। और उनका जो प्राइवेट स्पेस है, उनको एक प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए, हम दे सकते हैं, उनका राइट है कि अपना प्राइवेट स्पेस हो, वो अपने पैसे से अपना जो भी नेसेसिटी है उसको फुलफिल करके वहाँ स्पेस में स्टोरेज कर सकते हैं। और अपने जो थिंग्स, पर्सनल थिंग्स, उसको यूज करने की उनकी राइट्स है। और अपने एक्सपेंसेस के लिए कुछ मनी भी वो अपने आप से वो खर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और कोई मेंटल
वो टेलीफोन या लेटर किसी को भी फोन में बात कर सकते हैं, या फोन आया तो रिसीव कर, जैसे अब हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर विजिटर्स भी उनको डेली विजिट कर सकते हो, देखने के लिए राइट है उनका। और कोई भी जितना हो सकता है रेस्ट्रिक्टेड सेटिंग्स में कंडीशंस के हिसाब से, उस पेशेंट के इंडिविजुअल के मेंटल इलनेस के हिसाब से जितना हो सकता है हम रेस्ट्रिक्टेड सेटिंग्स में उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। और वो अगर मेंटल इलनेस है, अगर कॉमन मेंटल इलनेस है, इतना क्रोनिक स्टेज में, अक्यूट स्टेज में है, तभी भी वो कोई भी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, उनका राइट है। और वो अपने प्रॉपर्टीज को किसके नाम कर सकते हैं, उनका भी एक राइट है। वो अपने प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज करना है, डिस्पोज करना है, उनका वो राइट है, वो कर सकते हैं। थैंक यू। Yes, Monica, proceed. Now it's a time for the poem competition. May I please invite our first participant, Mr. Purushottam, with his poem. Good morning, Principal Ma'am, my teachers and dear students. My name is Purushottam Garg and I am a student of BSc Nursing first year. आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर कोरोना वायरस के लिए मैं एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। देखो हवाएं बदल रही है, देखो हवाएं बदल रही है। इल्जाम था जिन पर कि ईमान नहीं है जिनमें बाकी, इल्जाम था जिन पर कि ईमान नहीं है जिनमें बाकी। तेरी सलामती को अपनी जान की बाजी लगाए खड़ी है वो खाकी। देखो हवाएं बदल रही है, देखो हवाएं बदल रही है। और लांछन था जिन पर कि साहब वार्ड में राउंड पर भी नहीं है आते, और लांछन था जिन पर कि साहब वार्ड में राउंड पर भी नहीं आते। वही सफेद कोट वाले तुझे बचाने रोज सड़कों पर तुझसे है पत्थर खाते। देखो हवाएं बदल रही है, देखो हवाएं बदल रही है। तुझे भूखा देख जा किसी और का भी मन है रोता, तुझे भूखा देख जा किसी और का भी मन है रोता। आदम जात का है रब वो जो तेरे लिए रोज चौराहे पर लंगर है ढोता। देखो हवाएं बदल रही है। आज डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस और हमारे सिक्योरिटी गार्ड है सबसे ज्यादा काम के। आज डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस हमारे सिक्योरिटी गार्ड है सबसे ज्यादा काम के। और हम जैसे बॉलीवुड हीरो बस है सिर्फ नाम के। देखो हवाएं बदल रही है। सलाम है उसको जो सड़कें साफ करता है, कचरा लेके जाते हैं। उन डॉक्टर, नर्सेज को जो हमारा इलाज करते हैं, उन पुलिस कर्मियों को जो हमारी सुरक्षा करते हैं और फिर अपने अपने घर को जाते हैं। ये मैं हूँ, ये हिंदुस्तान है मेरा, जो हमदर्दी और मोहब्बत जताना जानता है। ये सारा परिवार है मेरा जो हर दुख में साथ निभाना जानता है। देखो हवाएं बदल रही है। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम एक पंक्ति के रूप में देना चाहता हूँ। आज लगता है कि काश कर दे सब कुछ ठीक, इस दुनिया को करके रिवाइंड, बट बिलीव मी दिस इज नथिंग बट द कलेक्टिव कर्मा ऑफ द ह्यूमन काइंड। देखो हवाएं बदल रही है। थैंक यू। Thank you, Purushottam. So our next participant is Chetna Gupta from BSc Nursing first year.
Shall I start? यस। सुप्रभात माननीय प्रिंसिपल महोदया जी, आदरणीय शिक्षकों, वरिष्ठों और मेरे प्यारे दोस्तों। कोरोना जैसे इस मुश्किल समय में हम आप जैसे कई लोग घर के साथ रहकर घर पर वक्त बिता रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से दूर रहकर भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो मैं चेतना गुप्ता, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा, आप सबके सामने एक ऐसी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो उन जाबाजों के लिए लिखी है जो अपने परिवार से दूर रहकर भी इस देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो यह कविता कुछ इस प्रकार शुरू होती है। ना भूलेंगे कभी उन सफेद कोट वालों को, ना भूलेंगे कभी उन सफेद कोट वालों को जो बनके आए मसीहा लड़ने इस बीमारी को। याद रखेंगे उन खाकी वर्दी वालों को जो आए सड़क पे हमें बचाने को। सलामत थे हम जब घर के भीतर जूझ रहे थे बाहर होके निडर। बनकर खड़े थे ढाल हमारी ताकि छू न सके हमें यह महामारी। करता सारा देश उन्हें आज सलाम है, करता सारा देश उन्हें आज सलाम है। उनकी हिम्मत और कुर्बानी पर हमें नाज है। शर्म आती है उन जाहिल गवारों पर, शर्म आती है उन जाहिल गवारों पर जो इन्हें पत्थर मारने आए थे। शुक्रिया करो इन जाबाजों का जो खुद की जान पर खेलकर तुम्हें बचाने आए थे। छोड़कर अपना घर परिवार बचाने को सिर्फ हमारा संसार, छोड़कर हमारा घर परिवार बचाने को सिर्फ हमारा संसार। अनगिनती है इनके उपकार जो बनकर आए थे उजाला मिटाने को यह अंधकार। इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। कोरोना योद्धाओं के हौसलों को आओ मिलकर और बढ़ाते हैं। सहयोग समर्पण दृढ़ विश्वास से कोरोना को हराते हैं। ना भूलेंगे कभी उन सफेद कोट वालों को जो बनकर आए मसीहा लड़ने इस बीमारी को। याद रखेंगे उन खाकी वर्दी वालों को जो आए सड़क पर हमें बचाने को। कचरा उठाने से मरीजों को बचाने तक, जरूरत की चीजें घर तक पहुंचाने तक सलाम करती हूँ उस हर एक योद्धा को जो खड़े हुए इस देश के आखिरी दम तक। चाहे बजा लो कितनी भी तालियां, ना कभी इनका ऋण चुका पाएंगे। चाहे यह वक्त बीत जाए, इनके साहस के गीत फिर भी गाएंगे। कई मुश्किल वक्त काट लिए, कोरोना भी गुजर जाएगा। कई मुश्किल वक्त काट लिए, कोरोना भी गुजर जाएगा। सहकार दो सरकार को, कोरोना भी आपके अपने आप थम जाएगा। ना भूलेंगे कभी उन सफेद कोट वालों को जो बनके मसीहा लड़ने आए इस बीमारी को। याद रखेंगे उन खाकी वर्दी वालों को जो आए सड़क पर हमें बचाने को। अपनी पंक्तियां मैं कुछ इस तरह समाप्त करना चाहूंगी। जब सारी दुनिया खुद के बचाने में जुटी है जान, तब ये जान पर खेल के चीन की कर रहे चाल नाकाम। इनके हौसलों से ही जीतेंगे कोरोना की ये भीषण जंग। इन कोरोना योद्धाओं को हम दिल से करते हैं नमन। इन कोरोना योद्धाओं को हम दिल से करते हैं नमन। थैंक यू। Thank you, Chetna. So our next participant is Miss Monica Pal from BSc Nursing third year. Monica. Sorry. Can I start? Okay, you can start. नमस्कार, आज मैं मोनिका पाल आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित पोयम लिखकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कोरोना वॉरियर और उम्मीद। आशा करती हूँ कि आपको यह पोयम पसंद आएगी। कविता की पहली पंक्ति उसको समर्पित है जिसकी वजह से यह भूचाल आया। अदृश्य है वो, विशाल है वो,
शरीर के अंदर जाए तो विनाश करे वो। अपनी बिरादरी के लोगों से बहुत अलग है, अपनी Monica, you are muted, I think. Please unmute yourself. We are not able to hear you. Yes, Veera, you may proceed with next participant. Meanwhile, she can get ready. Okay. So next participant is Kadambini from BSc Nursing first year. Good morning and respected to Principal Ma'am, Sir, and senior brother and sister, and my dear classmates. आज मैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ पोएम बोलना चाहती हूँ। सड़कें है लावारिस, घर पर बैठा इंसान है, सड़कों पर खादी में लिपटा हुआ घूम रहा बरदान है। ए कोरोना वायरस आपको सलाम है, आपको सलाम है। ए कोरोना वायरस आपको सलाम है, आपको सलाम है। मंदिर और मस्जिद है बंद, बस खुले अस्पताल और मेडिकल की दुकान है। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ डॉक्टर के रूप में भगवान है। ए कोरोना वायरस आपको सलाम है, आपको सलाम है। ए कोरोना वायरस आपको सलाम है, आपको सलाम है। स्कूल और कॉलेज है बंद, बस खुले राशन की दुकान है। हर खबर हम तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा मीडिया महान है। ए कोरोना वायरस आपको सलाम है, आपको सलाम है। ए कोरोना वायरस आपको सलाम है, आपको सलाम है। हर सुबह शाम की दुआएं हम करते आपके नाम है। हौसला फिर दिलों में है क्योंकि आप सब महान है। ए कोरोना वायरस आपको सलाम है, आपको सलाम है। ए कोरोना वायरस आपको सलाम है, सलाम है। नमन है हमारा उन वीरों को, कर्तव्य अपना जो निभा रहे कोरोना के इस समय में दिन रात सेवा कर। नमन है हमारा उन वीरों को, कर्तव्य अपना जो निभा रहे कोरोना के इस समय में दिन रात सेवा कर। सबकी जान बचाने की खातिर अपना जीवन जोखिम में डाला। जनता कितनी ना समझ है, उन पर ये हमला कर डाला। सबकी जान बचाने की खातिर अपना जीवन जोखिम में डाला। जनता कितनी ना समझ है, उन पर ये हमला कर डाला। आप हमारे लिए है ये बैठे, इन पर अन्याय न करो। दिन रात लगे हैं ये सारे इनका दो। आप हमारे लिए है ये बैठे, इन पर अन्याय न करो। दिन रात लगे ये सारे इनका दो। फूल बरसा हौसला बढ़ाओ, कोरोना के युद्धों में हाथ बढ़ाओ। घर पर बैठो प्रार्थना करो, कोरोना चैन को मिलकर तोड़ो। फूल बरसा हौसला बढ़ाओ, कोरोना के युद्धों में हाथ बढ़ाओ। घर पर बैठो प्रार्थना करो, कोरोना चैन को मिलकर तोड़ो। विनती है सभी कोरोना योद्धाओं से, देश को मुक्त करो इस महामारी से। साथ हम देंगे हर पल आपको, हर मुसीबत से दूर रखे भगवान आपको। विनती है सभी कोरोना योद्धाओं से, देश को मुक्त करो इस महामारी से। साथ हम देंगे हर पल आपको, हर मुसीबत से दूर रखे भगवान आपको। थैंक यू। Monica, are you there? Okay. Moving on, next participant,
is Mr. Yuvraj Singh Arda from BSc Nursing 4th year. Am I audible? Hello. Yes, भैया. Good morning to one and all. I am Yuvraj Singh Arda of BSc Nursing 4th year. कुमार विश्वास जी ने कारगिल युद्ध के समय एक कविता लिखी थी, है नमन उनको, जो उन्होंने सैनिकों के लिए लिखी थी. उसी कविता को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है और वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं. जब से ये कोरोना वायरस आया है, तब से जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जिनको हमने नाम दिया, जो कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसकर्मी और जो सफाई कर्मी हैं, उन्होंने अपनी जी जान लगाकर काम किया है. रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार लगभग पूरे विश्व में 7 से 8 हजार सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज ने अपनी जान गंवाई है. तो उनके लिए यह कविता समर्पित है कि है नमन उनको जो माह मार्च से यूं डट खड़े, इस जगत में एक नई जीवित कहानी हो चले हैं. है नमन उनको कि जिनके हौसलों को देख कर यूं रंग भरी तारों सी रातें भी धरा पर आ चुकी है. है नमन उनको बेटी जिसकी रात भर यूं रो रही, बिलख बिलख कर पिता उसका आंसुओं को यूं ही देखो पोंछ आया. बहन जिसकी राखी पर यूं देखती है राह देखो, भाई उसका आज सड़कों पर खड़ा तैनात बैठा. माँ जिसकी थालियों में बन रहा हर रात खाना, पुत्र उसका भूखे पेट भी दवाई दे रहा है. पिया जो अपने पति के इंतजारों में खड़ी थी, पर अभागा वो तो चौखट से ही देखो लौट आया. है नमन उस वीर को जो सुबह ही निकल पड़ा है, स्वच्छता का संदेशा घर घर पे वो जाकर दे रहा है. है नमन उनको हमने लौटाए हैं दुश्मन मार खाए मात खाए, और विजय इस वायरस पर हम लेकर ही रहेंगे. करिए वादा वीर देखो घर से यूं निकल पड़े हैं, जान की बाजी लगा कर जान जीत कर रहेंगे. राष्ट्र हित में खुद की जानों को यूं करके किनारे, देखना एक दिन इस वायरस को भी यूं मिटा देंगे. कि है नमन उन देह को जो पंच तत्व में विलीन होकर इस धरा के पुत्र आज आसमानी हो गए हैं. कि है नमन उनको लिख चुके इतिहास में कि तुम वीर थे इस हाल में भी. हे धरा के दिवाकर चंद्र तुमको ये नमन है. पिता की वो प्रतीक्षा और माँ के भोजन की वो थाली, देश हित में कर चले बलिदान तुमको ये नमन है. बहन की आंखों के तारे भाई के जीवित सहारे, हे सखा हे देश पुत्र युवराज का तुमको नमन है. कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, हम जिन्हें यूं याद करके पानी पानी हो गए हैं. कि है नमन उनको. धन्यवाद. जय हिंद जय भारत. Thank you, Bhaiya. Next, Monica. Can you continue here? Yes.
नमस्कार, आज मैं मोनिका पाल आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित पोयम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कोरोना वॉरियर और उम्मीद। आशा करती हूँ कि आपको यह पोयम पसंद आएगी। कविता की पहली पंक्ति उसको समर्पित है जिसकी वजह से यह भूचाल आया, जो कि इस प्रकार है, सुनिएगा। अदृश्य है वो, विशाल है वो, शरीर के अंदर जाए तो विनाश करे वो। अपनी बिरादरी के लोगों से बहुत अलग है, अपनी बिरादरी Monica, I feel you have some network issue. You can switch off your video. Yes, sir, I have. You can switch off your video and So you can let's see. Okay. Okay, sir. अदृश्य है वो, विशाल है वो, शरीर के अंदर जाए तो विनाश करे वो। अपनी बिरादरी के लोगों से बहुत अलग है, अपनी बिरादरी के लोगों से बहुत अलग है, और शोधकरण में भी ना समझ आए वो। छोटे से एक वायरस ने पूरे विश्व पर हमला किया, छोटे से एक वायरस ने पूरे विश्व पर हमला किया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन को उथल पुथल किया। अब आगे सुनिए कि इस वायरस की वजह से देश में क्या क्या उथल पुथल आया। जब देश जल रहा था अंगारों में, जब देश जल रहा था अंगारों में, चीख गूंज रही थी गलियारों में। जब देश जल रहा था अंगारों में, चीख गूंज रही थी गलियारों में। हर जगह बेबसी का मौसम था, विफल हो रहा हर शासन था। विश्व था अंधियारे में, विश्व था अंधियारे में। एक जगह जहां आग लगी थी, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, एक जगह जहां आग लगी थी वहीं दूसरी ओर लाशें बिछी थी। ये बात इटली की है। तो एक जगह जहां आग लगी थी वहीं दूसरी ओर लाशें बिछी थी। चारों ओर हाहाकार का समा था, ना उम्मीदी से लिपटा हर एक दिन, हर एक लम्हा था। ना उम्मीदी से लिपटा हर एक दिन, एक लम्हा था। और लोगों के अंदर था ऐसा डर समाया, लोगों के अंदर था ऐसा डर समाया, मानो जैसे कोई प्रेत का हो साया। अगली पंक्ति एक उम्मीद की ओर है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर जब बंद पड़े थे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जब बंद पड़े थे, लोगों के आस्था पर तब सवाल खड़े थे। तब एक नया उजाला सा आया धरती पर। कुछ फरिश्तों ने बीमारी से अंत तक लड़ने का जिम्मा उठाया, और तभी डॉक्टर, नर्सेस, मैजिस्ट्रेट, पुलिस सब लग गए जहां एक तरफ पुलिस और प्रशासन ने लॉकडाउन के कानून बनाए, वहीं दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेस ने बीमारी से लड़ने के लिए समर्पण भाव दिखाए। जरा सोचिए, रोज के रोज इतने सारे कोरोना पीड़ित को मरते देखना, ना उम्मीदी में भी उम्मीद कायम करना, 24 घंटे सेवा में तत्पर रहना, और साथ ही साथ अपने कुछ साथियों को कोरोना के कारण मरते देखना, क्या यह सब आसान था? और कविता की अंतिम पंक्ति उस सच्चे देशभक्त को समर्पित है। एक सच्चे देशभक्त को हम क्या
और कविता की अंतिम पंक्ति सच्चे देशभक्तों को समर्पित है। एक सच्चे देशभक्त को हम क्या ही परिभाषा दे सकते हैं, और मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हम इन सब वॉरियर्स को इस बलिदान के बदले कुछ समर्पित कर सकते हैं? और मैं आपसे पूछती हूँ कि हम इन वॉरियर्स को इस बलिदान के बदले कुछ समर्पित कर सकते हैं? खुद मर के भी देश को जीवित रखेंगे, खुद मर के भी देश को जीवित रखेंगे, ये नारा कहने हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Monica. And I thank all the participants for your participation. Moving on to next, I would request our organizer to display the quotes made by our students. This is participant number 1, Miss Arpita Malik from third year. Participant number 2, Miss Monica Pal from BSc Nursing third year. It was made by Miss Kadambini from BSc Nursing first year. Participant number 5, Mr. Pramod Sirvi from BSc Nursing first year. Participant number 7, Ms. Priyadarshini Parihar from BSc Nursing fourth year. Next, participant number 6, Ms. Kanupriya Sharma from BSc Nursing first year. Participant number 4, Mr. Jagdish Patel from BSc Nursing second year. Now here we end with the quotes display. Now I would invite our Mr. Chris sir to share a few words. Good morning all. सबसे पहले I wish everyone a happy mental health, and we all are here to celebrate World Mental Health Day. And at the utmost, I would like to congratulate Manish sir and team for organizing such a nice program in short span of time,
And every year we used to celebrate World Mental Health Day, and we used to celebrate as a week. Unfortunately, this couldn't happen this time, but we are here for virtual celebration. And nice to see you all students. After a long time, I can see many of students are here in together, like in how we used to sit in our multi-purpose hall together and enjoying the program. So nice to see you all, and I hope all of you are safe. I think I am not the right person to speak much because always takes class and you all listens us very well, nothing new. But since we are nowadays, we are living a new normal life. So we have changed a lot. Our system has changed. Our personality is a little bit disturbed. Our financial concern, social concern, many things are affecting us daily. But I feel all of you are now comfortable. We are not much discomfort in this aspect nowadays. College life actually it is often often an experience with good atmosphere. It is a life of freedom. Actually, we can say we all miss our college days. So the adolescents, even every year mental health day, the World Mental Health Federation, they give focus on mental health for all, especially adolescents. But this year the theme already is been unfolded by Narendra, so you all are aware about the theme. But I am here, I just want to share something which I know about it. Being a psychiatric specialty, we teach you a lot about mental health, illness, cause, symptoms. सब कुछ हमें आता है theoretically, and practically also how we are following that is very important actually. So the students, how we can promote our mental well-being. So that is a very essential part now these days, how we can promote ourselves. So here the term spirituality also plays a great role. Spirituality and mind, both, I mean, spirituality and your mental health. Like we say always, the power of human being is power of human mind, and power of human mind is power of your subconscious mind, and power of subconscious mind is power of beliefs. So whatever we listen directly, it goes to us on our conscious mind, and it takes after some time it will directly go to your subconscious mind and it will become a belief. So how we can prepare our subconscious mind, that is what I just want to speak here. Because there are many possibilities being a student. Now you all are sitting here, you may सबके मन में यही क्वेश्चन है, कॉलेज कब खुल रहा है, when the college will start, हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा. And sometimes we are not answerable, we are not able to answer your questions. Many times students जब क्लास लेते हैं, मेरा पहला रिक्वेस्ट ये बच्चों से ये है कि don't ask me when the college will open. But still students used to ask. So don't think in that way everything is happening for a good thing. You just wait, and it is a time to learn something normal to new normal. As we all know, we are all a new normal life right now, right? So the thing is how, what, where we are. Like as I said, spirituality also matters a lot. You should know where you are right now, what you are, who am I. That is the identity. Self identity is important thing. If you know about yourself, you can achieve great heights. That's the only thing I can say. How much we are sincere to ourselves in our work, our hard work, our sincerity, our perseverance. This is ultimately an important thing for a greater mental health well-being. So for that, you must know your potentials. I'm not telling about your passion, your mission, vision, nothing. I'm not a person to speak on that. Even I also don't know what's my passion or what's my vision or something. But the thing is, everyone knows about your own potential, your own skill, what you are, where you are, what can you do for yourself. मतलब खुद के लिए आप क्या कर सकते हैं, then only you can work for others. Recently, 2 days before, I have shared one story, like a real story I shared to first year students. Again, I'm repeating, I'm sorry for that again. I recently read a story, a life story actually, of Mr. Dr. Hamilton, is from Cape Town. So
in 1950s there was a person Hamilton. So Hamilton as a person tha, he was from very poor family, and his parents were shepherds, and he neither he go to school nor he have any knowledge, nothing. He neither he know to read nor writing. So he was later considered in 2005 as the first illiterate surgeon in this world, over the world first illiterate surgeon. So the story really inspired me also. That's why I shared even with the first year students 2 days before. uh, he was like a very hard work guy, because he know that his parents cannot help him much, and he felt that I should do something for my parents. So he started going working here and there as a laborer work or something. He used to go to clean the tennis court. He used to assist some people. He used to do the work as a servant work. Many things he used to do. So the story was happened in Cape Town. So in the Cape Town, there was a university, Cape Town Medical University. All of you might be aware about it. So there was a doctor. I don't remember exactly. I think Dr. David or something. So he was an animal surgeon, actually veterinary surgeon. So every day that doctor had a thought, like he used to observe the giraffe. So giraffe used to drink the water from downward, मतलब head low position में होता है. So how it is possible that giraffe is drinking water in a head low position? Its head is down and drinking water, and why they are not getting any seizures, convulsion? It is difficult actually. So he thought to do some surgery or something to see what exactly. And he took the giraffe on his operation table and he started doing surgery and operation. But meanwhile, the giraffe shook his head. So it was difficult to, because giraffe is a very strong animal, so it is difficult to hold. So he saw this Hamilton who was washing some clothes or something outside his coat. So he just called, उन्होंने just Hamilton को बुलाया, बोला कि मुझे थोड़ा हेल्प करो टू टाइटली होल्ड द नेक ऑफ जिराफ, क्योंकि जिराफ का नेक बीच बीच में हिल रहा था. सो द हैमिल्टन इज वेरी हार्ड वर्क गाय, एंड जस्ट होल्ड दैट नेक ऑफ दैट जिराफ, एंड दिस ऑपरेशन टुक फॉर 8 hours. उस जमाने की बात है, दैट इज 1950s की कहानी है. एंड 8 घंटे के ऑपरेशन था वो. एंड मीन टाइम द डॉक्टर वाज टेकिंग टी, कॉफी ब्रेक, समथिंग. ही वाज टेकिंग ब्रेक, बट हैमिल्टन वाज कंटिन्यूअसली स्टैंडिंग एंड होल्डिंग द नेक फॉर 8 hours. So that is the first thing that doctor has noticed. He neither asked the Hamilton neither asked for any compensation nor he did complain. उसने कोई complaint भी नहीं किया, ना कोई compensation भी मांगा, ना कोई extra wages भी मांगा. He considered it as his work, for today's work, as he is already enrolled as a occupation. इसको occupation के part समझ गए. Later डॉक्टर को बहुत अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा. ही इज वेरी गुड, सिंसियर एंड परसिवरेंस, दैट इज अ बेसिक थिंग ही हैज नोटिस्ड. लेटर डॉक्टर ने उसको अपना लैब असिस्टेंट बनाया. धीरे धीरे उसको अपना इम्प्रूवमेंट दिखा, एंड ही बिकेम द अनदर असिस्टेंट टू द सर्जन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी. एंड दैट केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हॉस्पिटल फॉर डूइंग हार्ट बाईपास सर्जरी. बाईपास सर्जरी उस समय हुआ था 1970 समथिंग टाइम पर, एंड केप टाउन में. सो धीरे धीरे आप बाकी सर्जन्स उसको अपना असिस्टेंट बनाए, एज एन असिस्टेंट सर्जन. ही इज नॉट एजुकेटेड नथिंग, बट फिर भी अपने ऑपरेशन टेबल में काम करने के हिसाब से उनको असिस्ट करने के लिए, एंड टू टीच मेडिकल स्टूडेंट्स. एंड दिस Hamilton, he used to do all the surgery. I mean, he used to do stitching. Patient का suturing वगैरह वो करते थे. Daily कम से कम 8-10 patient का stitching करते थे. And his hand was very clean and fast. So his work got accomplished, and it was astonishing work from him, his hand. And all the medical students also used to learn from him. And आप सभी जानते हैं, सर्जन इज सच ए पर्सन हु नो द ह्यूमन बॉडी वेल देन अदर डॉक्टर्स. ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा जो जानते हैं सर्जन्स है. तो इन्होंने ऐसा बाकी डॉक्टर्स जो सर्जरी करते करते हैमिल्टन ने सीखा. Hamilton identified many loopholes, many organs, many arteries, veins. Even for the liver bypass surgery का ऐसा हुआ था, ऐसा कोई artery है, I don't remember which artery, वो Hamilton ने डॉक्टर को बताया, and that part is helping for liver transplantation actually. Later that also got accomplished, and it got recognized by the people of Cape Town University.
So he is very sincere to his work. Daily 6 o'clock subah, sharp 6 o'clock he used to come at OT, ऑपरेशन थिएटर में, एंड पीपल वहाँ के पेशेंट्स उसके काम से बहुत मतलब तारीफ करते थे. दे वर वेरी अप्रिशिएटिंग टू हिज वर्क. एंड पीपल ऐसा कहते हैं, पीपल यूज टू फिक्स देयर वॉच एट हिज टाइम. मतलब इनका टाइम इतना शार्प था, तो उस टाइम को देख के पेशेंट वगैरह दूसरे लोग अपना वॉच घड़ी फिक्स कर देते, टाइमिंग. इतना परफेक्ट आदमी. बट ही नेवर आस्क फॉर एनी एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन और एनीथिंग एक्स्ट्रा. ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब. And later in 2005 in Cape Town University में मेडिकल जो यूनिवर्सिटी में जब कन्वोकेशन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था एज एन ऑनररी डिग्री. ऑनररी डिग्री जो होता है आप सब जानते हैं, ऑनररी डॉक्टर डिग्री सबको मतलब कुछ लोगों को, स्पेशल लोगों को मिलते हैं जब हम कोई ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो. बट ही इज एन इलिटरेट पर्सन, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई डिग्री है, नथिंग बट इज हार्ड वर्क, हिज वर्क. दैट उस वर्क के वजह उनको पूरा यूनिवर्सिटी ने एज एन ऑनररी डिग्री दिया, एज ए डॉक्टरेट फॉर सर्जन, एंड इज द फर्स्ट इलिटरेट सर्जन ऐसा कंसिडर किया. He did not do any surgery, but he is assisting. He is the best teacher. That time he was the best teacher for the medical students. So what the message I was just want to give here, where you are right now, you be happy with that. Whatever you have, उससे हमें खुशी देखना चाहिए. Happiness, sadness also comes naturally. That is true. We all are human being. And the perseverance. Perseverance का मतलब क्या है? How much you are trying to reach the success. And सबके mind में success का definition, अपना खुद का definition. You should have your own definition of success. If I feel that if we work more than others, if we learn more than others, and if we expect less than others, there you are a successful person. So same way उसने अपने job को priority नहीं दिया, rather than job his work was important. Job मिलना easy है, that is a criteria. As per the criteria you may get job, but the work you are doing for that job is important. Work without title, that is very important. Without any title, without anything, if you work naturally, you will become a successful and you will be always happy. So that was a message and it really inspired me. That's why I shared here. So don't get sad. Wherever you are, you should happy with that. That is the only thing I can give, and we can find satisfaction from that life. So thank you once again to all the organizers, Manish sir and all SNA team. You have done wonderfully. You have organized everyone, and really happy to see teachers and even spiritual counselor also there. So I hope you all have enjoyed, and you will definitely pass good message for mental health to your nearest and significant relations. Thank you, and once again be safe and have a good day. Thank you once again. Thank you so much, Chris sir. So our next performance is dance by Miss Chetna from BSc Nursing first year.
वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया पग पग डोलो रे डग पग से मैं चलती हूँ जग पगलों से जलती Sorry. Thank you so much, Chetna, for the dazzling performance. Our next speaker is someone who is the backbone of this college and someone who has holded us together. May I please welcome Mrs. Shashibala ma'am, the principal of SLM GNC, for her blessing. Hanji, good morning, everybody. Good morning, ma'am. I hope I'm audible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. Clearly. Yes. So nice to see all of you on this platform. ये देखिए pandemic का कमाल मतलब even if we are sitting so far away, we are not in one place in the college, but still we can see each other. May not be physically, but we can, and then we are celebrating almost all the days virtually. The whole world has become virtual. The pandemic has given us many other ways of communicating and presenting and so many other things. So first of all, I would like to thanks to Mr. Manish for organizing all this program, remembering this day and organizing this. All the students, those who all have actively participated in this. Everyone, I can see that everyone has participated very well, and the presentations, the competitions, they all did good. And we see we are celebrating Mental Health Day. When we talk about the health, we talk about 2-3 aspects: physical, mental, social, and spiritual, which are all in the definition of health. I'm sure everyone remembers it, the health definition. Remember everybody, definition of health? Everybody remembers definition of health? No response? Some mute हैं क्या? Yes, ma'am. अच्छा, सबको म्यूट किया. Okay, but you can wave your hands, हाँ? तो लेकिन आज का दिन we are talking about the mental health, and mental health it's not that कि in the whole year एक दिन हम celebrate करें mental health के लिए, because mental health is equally important like any other types of physical, social, or spiritual health. But we see in this pandemic, this lockdown has given us a time period where we can reflect upon and find the creative solutions and interventions to facilitate the mental health response in the emergency
context, because it's a great emergency which has not affected only one country on one state. The whole globe is affected by it. It has affected globally. Every part of the world is being affected equally. Rather, we would say that there are some parts of over the globe, across the globe, which are affected more, where there have been huge number of deaths because of this. Whereas if we compare our country, if we compare India to the other countries, we are still lot better than the other countries, because you all know it, सारा information data हर एक के पास है. I shouldn't be going into that details. हम information भरते जा रहे हैं. We have all the information with us. बस उस information को हमको हमारे लिए कहाँ तक अच्छी है और कहाँ तक नहीं अच्छी है, we should sort that out as well. मैं भी एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. मिडियावल टाइम्स में यूरोप में, जैसे ये आपका हमारा अभी ये जो पेंडेमिक है, इसी तरह से मिडियावल टाइम्स, इट्स ओनली इन द यूरोप इन द 18th सेंचुरी. वहां पे एक एपिडेमिक हुआ एंड देयर वाज उनका एक रिचुअल था या कुछ था कि कहते हैं ना, एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द कंट्री दे वुड से कि वहां पे था कि कुछ मॉन्क्स आकर के जब भी कोई ऐसा एपिडेमिक होता था, they used to stand there at the outskirts of that मतलब कंट्री के बाहर, और आकर के पूछते थे, मतलब खड़े होते थे वहां पे, एंड दे यूज्ड टू आस्क दैट एपिडेमिक कि मतलब इस बार तुम कितने लोगों को लेकर जाओगी, मतलब ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, इस बार तुम कितने लोगों को लेकर जाओगे. कोई भी डिजीज आती है तो उसके साथ क्या होता है, इट्स नॉट दैट ओनली द डिजीज कम्स फर्स्ट, इज इट राइट? इट्स नॉट दैट डिजीज के साथ में क्या होता है, इलनेस के साथ में क्या होता है, इलनेस होती है, उससे डेथ्स होती है, एंड देन कम्स द fear as well. There are three things which are really involved with any disease or the illness. अब वो कैसे हमको इफेक्ट करती है, तो these monks every time they used to ask the जो भी इलनेस आई है उसको पूछते थे कि भाई इस बार तुम कितने लोगों को अपने साथ लेकर के जाओगी. तो उसमें से तीनों वो जवाब देते थे. जैसे इलनेस है, वो कहती थी भाई मेरे साथ कम से कम, इलनेस है, जितने भी लोग इससे अफेक्टेड होंगे वो तो मेरे साथ जाएंगे, वो मेरे साथ हैं ही होंगे इलनेस में, वो मेरे साथ जाएंगे ही. एंड देन डेथ कहती है कि मतलब इलनेस के ऑलमोस्ट 50% लोग मेरे साथ जाएंगे, उनको मैं लेकर के जाऊंगी. एंड देन कम्स द टर्न ऑफ द फियर. देन फियर सेज आई वोंट टेक एनीबॉडी, मैं किसी को साथ लेकर नहीं जाऊंगा. एंड देन उसके बाद क्या होता था, उनकी एंट्री होती थी इलनेस की, इट गोज इन द सिटीज और द लाइक दिस. एंड जैसे जैसे होती है तो धीरे धीरे वो क्या देखते हैं कि बीमारी से जो लोग जो बीमार हो रहे हैं वो तो है ही हैं, है ना, और उसके साथ जो बीमार हैं वो जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो बीमार हैं वो जा भी रहे हैं. बट लेकिन उसके साथ क्या है, जो डेथ है उसमें से क्या है, ऑलमोस्ट 50% लोग डेथ के साथ, डेथ उनको जो क्या है वो लेकर के जा रही है, उन लोगों को डेथ लेकर के जा रही है. बट मोर देन दैट, with a huge lot number of that, there are so many persons, so many sick people, उनको कौन लेके जाए, लेकिन और भी बहुत लोग इसके साथ साथ जा रहे हैं. पर वो लोग कैसे जा रहे हैं? Then those monks asked again कि भाई ये सब इतने सारे कैसे जा रहे हैं, डेथ तो इतने लेके जा रही है, ये भी लेके जा रही है, पर तो बाकी लोग कहाँ से जा रहे हैं? Then the fear says कि मैं उनको नहीं लेके जा रहा हूँ, वो स्वतः कहते हैं अपने आप ही, वो अपने आप ही मेरे साथ आ रहे हैं. मतलब डर से जो लोग हैं, वो जब हम किसी चीज से डर जाते हैं, मतलब चीज से नहीं, बीमारी से, चीज से डरना इज डिफरेंट इशू, लेकिन बीमारी से जो लोग हैं, जो इतने भयभीत हो गए हैं, दे आर सो मच अफ्रेड ऑफ कि वो ऑटोमेटिकली कि वो भी अपना शरीर छोड़ देते हैं. दे ऑल्सो डाई ऑफ. सो मेनी पीपल, डर से ज्यादा लोग मरते हैं. तो मतलब
तो इस तरह से दो इट इज अ स्टोरी बट द कंक्लूजन कम्स, डर, बीमारी है, डेथ है एंड डर। द थर्ड एस्पेक्ट इज डर। हमारी इस पैंडेमिक में भी क्या है, देयर आर मेनी पीपल डाइंग all over the world, you know. Some are emotionally very upset, there is anxiety, there is stress, there is so many things that emotional distress is there. और ये सब क्यों है? There are so many restrictions are there. There are so many levels of anxieties are there. Fever is again there. That fear of isolation, fear of distancing, fear of and isolation is again a fear of so much because staying in the home कितने लोग महीने लोगों को हो गए हैं, and there are so many other factors as well. लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, उनके पास काम नहीं है, उन सब के डिटेल में भी हम ना जाएं, but we all know it, है ना. नौकरी छूट गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, डेली वेजेस वाले, उनके अपने डर हैं, because every kind of class, every kind of profession has their own fears in them. But इन सब के साथ आपको बीमारी को भी जूझना है, तो ये डर जो है ये बीमारी लेकर के आई है, लेकिन इस डर पर अगर हम जीत पाते हैं तो हम इस बीमारी को भी जीत पा सकते हैं. अब इस डर से हमको कैसे जीतना है, दिस इज अगेन, जैसे अभी कृष्ण सर ने आपको बताया, मैंने पूरा उनका मैं सुन नहीं पाई बिकॉज ऑफ सम फोन वगैरह बीच में आ रहे थे, जो मेरे को थोड़ा सा जो मैंने सुना कि दिस इज अगेन अ थॉट प्रोसेस, कि जैसा हम सोचेंगे, बिकॉज हमको अपने सबकॉन्शियस लेवल में अगर हमें डर पैदा ही किया हुआ है, हम डरते ही जाए. डर हमारी लाइफ में पहले भी था, हर एक की लाइफ में था, बट दैट वाज कंडीशनल, दैट वाज सिचुएशनल. वो क्या होता था कि हम किसी भी सिचुएशन से, सपोज आप आज घर से बाहर निकल रहे हो, सुबह निकलते हैं, आप अपनी गाड़ी निकालते हैं, आप अपना मोटरसाइकिल निकालते हैं, आप जाते हैं, यू डोंट थिंक कि भाई हाँ मैं निकाल रहा हूँ, मुझे डर है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए. आप ऐसा तो नहीं सोचते, आप जा रहे हैं. इन unfortunately, suppose if the accident happens, that is unfortunate incidents, right? तो अगर वो होगा तो हम बोलेंगे, मतलब तो थोड़ा डर होता है, but it stays for a while, right? वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहता है. लेकिन इस बीमारी ने क्या है, हमारे अंदर एक constant fear पैदा कर दिया हुआ है लोगों के अंदर. दो अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, द सेकेंड फेज, कि उस डर से लोग उभर पा रहे हैं, बाहर निकल आए हैं, बट स्टिल हमको जो लोगों की डेथ हो रही है या कुछ है, वो डर कहीं ना कहीं हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है. और जिनका मेंटल लेवल बहुत ज्यादा लो होगा, जिनका मतलब जो इस सिचुएशन को, जो अपने थॉट्स को पूरी तरह से पॉजिटिविटी में नहीं ला पाएंगे, उनको ये इफेक्ट बहुत देर तक करेगा. It will go off. Suddenly it's not going to go. It's still, there is a long way for this disease to go. We all know it. कब तक जाएगा हमें नहीं पता है, because there is no treatment yet, there is no vaccination yet. So it is there. तो इसमें इस बार के मेंटल हेल्थ में भी उन्होंने यही बताया है कि we have to make the people aware of the mental health. और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं कि हमको लोगों के डर को कैसे खत्म करना है. We have to think of that also. This is again a very important factor. और इसमें हमको लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हमने नर्सिंग में हम बहुत पढ़ते हैं, इंटरवेंशन में बहुत ज्यादा आता है जी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पेशेंट को. आई होप एवरीवन एग्रीज विथ इट. बट साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हमें क्या कहना है, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट द डिजीज इज, हाउ इट इज गोइंग टू स्प्रेड. मतलब इट्स नॉट नहीं आपको इससे कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे. इतना कहने से वो ठीक नहीं होंगे. डर अंदर है, हमको उसको एबॉलिश नहीं करना है, हमको उसको स्टेप वाइज खत्म करना है. और उसके लिए हमको उसमें पॉजिटिविटी को भरना होगा, तभी वो धीरे धीरे वो डर हमारा खत्म होगा. और उनको राइट सिचुएशन, राइट चीज के बारे में, प्रोसेस के बारे में, डिजीज के बारे में हमको उनको ठीक से बताना होगा, ताकि वो उस डर से बाहर निकले. तो मैं इसी के बारे में आपको कहना चाहूंगी कि आप फैक्ट्स उनको क्लियरली बताएं. अगर कहीं आप देखते हैं किसी को भी कोई इंसान डरा हुआ है, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि बहुत लोग, पता चल जाए किसी को कि कोरोना है, तो अभी भी बहुत लोग एकदम से बहुत डरते हैं. इट इज स्टिल देयर, इट इज स्टिल परसिस्टिंग. और ये कब खत्म होगा वी डोंट नो. तो वी स्टिल, आई वोंट से कि वी हैव टू एबॉलिश इट, बट वी स्टिल हैव टू थिंक ओवर इट, कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, उनको कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं. तो
आज के दिन मैं चाहूंगी हम इसके बारे में थोड़ा सोचे, हर एक कोई अपनी तरीके से सोचे कि हम कम्युनिटी लेवल में, हम अपनी सोसाइटी में, हम लोगों में जहां भी हम रह रहे हैं, हम उनसे नहीं मिल रहे हैं, पर अभी तो बाहर सब निकल रहे हैं। आप देखोगे कि बहुत लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जब भी कहीं से किसी को पता चलता है कि कोई हो गया, तो आसपास के लोग क्या होते हैं, सारे के सारे डर जाते हैं। तो हमें उसको कैसे ओवरकम करना है, उन लोगों के डर को हमको कैसे खत्म करना है, दैट इज बाय योर explanation and again by the psychological support to those person। तो हमको ये सोचना है सबको कि हम इस चीज पे ध्यान देना है हमको, कि आज आप ये सोचें कि उन लोगों को अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में, अपने फ्रेंड्स में किसी को अगर होता है, हमारे सर्कल में किसी को होता है, अगर वो डरे हुए हैं तो आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरा मैसेज आप सबके लिए यही रहेगा, तो सबकी आप मदद करें, बिकॉज वी आर नर्सेज। हम कुछ नर्सेज के हैं, दे आर मेनी नर्सेज, नॉट कुछ कहूंगी, दे आर इन द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, बट जो फ्रंट लाइन है वो हॉस्पिटल्स में है, बट एज ए कम्युनिटी नर्स आपका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज अभी आप फ्रंट लाइन में कोई भी हम में से नहीं है, बट हम कम्युनिटी में तो हैं, हम सोसाइटी में तो हैं, राइट? तो हमारा रोल यहाँ पे बहुत बड़ा है। वी हैव ए वेरी बिग रोल टू प्ले इन दिस सिचुएशन टू हेल्प पीपल, कि अगर वो इस सिचुएशन में आते हैं तो हम उनके डर को खत्म करें, हेल्प करें उसको खत्म करने में, उसको ओवरकम करने में, खत्म नहीं कर सकते, उसको ओवरकम करने में, राइट? सो ऑल इस चीज का, इस पे सोचें और इस पे काम भी करें। एंड आई एम श्योर दैट एवरीबडी इज हेल्दी एंड सेफ, है ना? अभी रिसेंटली मुझे न्यूज मिली थी कि आपका हमारा एक जो स्टूडेंट है, क्या नाम है, कौन है? भागीरथ, यस, भागीरथ। सो ही इज गुड, है ना? अब मैं देख रही हूँ कि उससे जब मेरी बात हुई थी, ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एट ऑल, पर अच्छे से टेस्ट कराया, उसको लेकर के गए लोग। तो मतलब वो जो स्पिरिट है वो हमारे उसमें होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी नीड टू इंस्टिल इन अदर्स हु आर विद अस। तो सब लोग अपना ध्यान रखें, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अभी जो एड इसमें आती है ना मोबाइल में, वो भी चेंज हो गई है, अमिताभ बच्चन की आवाज आ गई है उसमें। हाँ, इट हैज चेंज्ड एंड ही इज फोकसिंग ओनली, जो पहले था वो वही है, जो भी पॉइंट्स बताए गए थे पॉइंट्स वहीं के वही हैं, बट स्टिल वी हैव टू फोकस ओनली। केवल 2 बातें हैं जिनसे हम बच सकते हैं और हम औरों को बचा सकते हैं, और सबके सब उन बातों को ध्यान रखें, उस चीज को नजरअंदाज नहीं करें, और मास्क जरूर पहन के रखें आप कहीं भी जा रहे हैं। इट इज ओनली फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। द हॉस्पिटल टू हैज नॉट गिवन परमिशन फॉर द इंटर्नशिप एज वेल, बिकॉज we are also scared of your safety. That is the reason main, that you are not given permission for this internship in the hospitals as well. We are worried about your safety and your safety as well. So everyone, please take care of your health, safety and security. I hope हम जल्दी ही मिलेंगे अभी कॉलेज में। टाइम इज कमिंग फास्ट, एग्जाम शुरू हो गए हैं, और एग्जाम के बाद में जहां तक मुझे लगता है कॉलेज खुलेगा, and everyone should be aware of, I had passed a message सबको कि एग्जाम्स हमारे आएंगे, सबको, everyone will be preparing। जो पहले एक आया था कि सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उस नोशन में ना रहें, तो घर में एंजॉय कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, बट नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द स्टडीज एज वेल। थोड़ा थोड़ा अपनी तैयारी भी करते रहें। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ and healthy. Okay, and thanks everyone again to the organizers too. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sharing your precious knowledge and experience. For next, I would like to welcome Miss Arpita Malik from BSc Nursing 3rd year with her poem on Mental Health Day. Good morning, everyone. I am Arpita Malik. I am from BSc Nursing 3rd year. Tomorrow is Mental Health Day, so today I am here to share my views about this topic. I have written some lines here. अच्छा लगे तो मुस्कुरा दीजिएगा, और कहीं गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। So let us start.
कोई कहता पागल है वो, कोई कहता मनमौजी है, विज्ञान अपनी भाषा में उसे मेंटली इल कहता है। अकेलेपन और हताशा मन को छल्ली छल्ली कर जाती है। सच कहता हूँ उस दौर में सिर्फ दिलासा काम नहीं आती है। कोई कहता भूत की साया, भोपा से मिलकर आओ जी, कोई कहता शादी करा दो, दिमाग ठिकाने आ जाएगी। चमक धमक की दिखावे में असलियत कोई सुनता नहीं, दिल का कोई श्रोता मिल जाता तो कोई सुशांत आज मरता नहीं। ब्रेन केमिकल बैलेंसिंग में हम तो पूरा फोकस्ड है, प्यार और एक्सेप्टेंस की बातें कहीं अधूरी ही रह जाती है। दवाई क्योंकि पानी पत्तों में नहीं जड़ों में डाली जाती है। प्रोटीन पाउडर और विटामिन्स की गोली मन का जख्म भरता नहीं, मन को क्या परोसा जाए ये तो कभी सोचा ही नहीं। कोविड के इस महामारी में मानसिक स्वास्थ्य संकट में है। आईसीएमआर तो ये भी कहता 14% आबादी पीड़ित है। अब आती है हमारी बारी, हम क्या कर सकते हैं? मलहम भले ना लगाए, नमक छिड़कना तो रोक ही सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना हर एक की जिम्मेवारी है, क्योंकि ओरल स्टेज में डॉक्टर्स नहीं, माँ ही साथ होती है। खेल खेल में पापा सिखा दे, खेल खेल में पापा सिखा दे, हार जीत दो पहलू है। जीत पर अगर मेडल मिलता, हार पर उसे शाबाशी दे। गुमसुम अगर रहता कोई, दोस्त दोस्ती की कसम डाले, सोसाइटी उसे आइसोलेट नहीं, प्यार से उसे गले लगाए। टाइम पर सिर्फ दवाई दे देना यही हमारी काम नहीं, क्योंकि हम नर्सेज हैं, फार्मेसी वाले भैया नहीं। बच्चा बूढ़ा जवान किसान, बच्चा बूढ़ा जवान किसान, आओ जहाँ को करे रोशन। अगर प्रगति है ऊंची इमारत, बुनियाद में है स्वस्थ मन। प्रगति है ऊंची इमारत, बुनियाद में है स्वच्छ मन। थैंक यू। Thank you so much, Miss Arpita Malik. That was really great lines, and what to say next. Now, moving forward, now it's a time for something in which you can have tachycardia or apnea together. Yes, it's a result time of all the competitions. So to announce the winners, may I invite someone who always stays calm. May I invite Mr. Manish Sharma, sir, the Assistant Professor of SLM GNC and SNA Advisor for this. Good morning to everyone. Thank you, Monica, for giving me this great opportunity. Respected Principal Ma'am, SLM GNC, Vice Principal Ma'am, Kalpana Sister, my dear colleagues and dear students. As it is happening first time in the SLM GNC history that we are celebrating World Mental Health Day on this electronic media. And I really appreciate SNA team, Narendra, Monica, Veera Jyoti, Naresh for their entire efforts for making this successful. And a special thanks to Mr. Chris Thomas for his technical support and guidance. And this is the time that you have given me for the winner announcement. And on behalf of this World Mental Health Day celebration, we put the various, we actually organize various competitions like poem competition, poster competition, and quotes competition. So poster competition, total 2 students participated, and Miss Nidisha and Miss Sudhanjali both evaluated the poster competition. In quotes competition, total 7 students participated, and Miss Bhanupriya, Vice Principal, evaluated the quotes. And last, the poem competition, in which 7 students participated, and Mr. Harish and Mr. Chris Thomas evaluated them. So here I would like to just announce the winners, but before that I really would like to appreciate every participants and their performance, that even though we are in a virtual world, they done something great for us. So really I appreciate to every participants. And it's not about that really competition, because we are giving token of love for every participant, those who are participated. It's not about the winning and lose, but somehow someone got the best one. So here I would like to announce their results. Firstly, we'll go through with the poem competition. Any guesses for the third prize?
You can give me in chat box. Okay, if you want to unmute, then you can speak up. Which Poem, position, sir? third position. I think Chetna. Okay, third position goes to Mr. Purushottam, BSc Nursing first year student. Second prize goes to Miss Chetna Gupta, BSc Nursing first year student. Nice. And as we all know that who is the first one? Yuvraj Singh. Raj Bhaiya. Exactly, Yuvraj Yuvraj. Singh Ada, he got the first prize. You know, like in actual way, that's a poem competition, and he is the only one who recited the poem in that way. So first prize ultimately goes to Yuvraj Singh Ada. Congratulations, both the third, three of the winner, and rest of are done very well. And we also have the token of love for them. It's a consolation prize to them. And secondly, we go through the poster competition. In poster competition, only 2 students participated, and the first prize goes to Miss Arpita, BSc Nursing third year student. She has done very well. Due to some issues, Vibhu Arpita didn't make on time. Actually, in 1 hour, she didn't complete it, so that's why she got the less mark. And lastly, the course winner, the third prize goes to Miss Arpita, BSc Nursing third year. Second prize goes to Miss Monica Pal, BSc Nursing third year. And first prize goes to Miss Priyadarshini, BSc Nursing fourth year. So they are the winners of the course course. So here we ends with the various competition. Thank you so much everyone to being part of this celebration. Thank you a lot. Thank you so much, sir, for announcing the winners. Today, we have a very special guest with us. We have a spiritual counselor, BK Kalpana Didi ji from Mount Abu, Rajasthan. She has influenced many lives by her counseling and spiritual therapies. So may I please welcome her? On this platform to share her valuable knowledge. Good afternoon to all. Shashiwala ma'am and all professors, sirs. I'm very happy to join all of you for this celebration of Mental Health Day. And I congratulate to all the organizers for organizing such a beautiful, entertaining and creative workshop for all the students, those who are sitting in their respective houses. It's wonderful to see all of them. They are very much connected with us right now. So I was listening to Christopher sir and Shashibala ma'am's speech for this occasion. And what I have derived from their speech is, first, Christopher sir has mentioned about the spirituality, the spiritual aspect of health. And ma'am also has repeated the same aspect in her speech. So I would like to continue with that aspect, because that aspect is always neglected by the people. And even mental health aspect is also neglected many a times when we consider the health. So it is very much important to invest our thoughts, invest our energy, invest our efforts towards the mental health. So I would like to talk with the students, as we have all got the freedom to use our time, utilize our time in this pandemic situation, as we are free from the colleges and the boundaries of the rooms where we used to sit together and study together. That was a privilege, and we are very much looking forward for that again. But still, right now we are experiencing the freedom. So I would like to tell all the students that we should take the right benefit of the freedom which we have received. And now with the freedom, we have to be very responsible towards our own life.
And that responsibility can be experienced through our practice of being healthy, right? Every day we listen on the TV or radio that we have to maintain the social distance, wear the mask, and wash the hands, use sanitizers. So with this freedom, we have accepted the responsibility towards ourselves and society. So we have to use the freedom in a right way. The second thing I would like to say that we have to manage our time. It's very important that we have received a lot of time to utilize for ourselves and for the society. As the community workers, we need to think about ourselves first, and then for the society also. So utilizing the time, because since last few months, I'm attending many patients, those who are facing the stress due to the new normal. Actually, we are saying it normal, but it is not easy to accept it as a normal. And people are facing the problem due to these classes, the excessive classes on screen. Actually, screen time has increased, and due to that, people are facing many physical problems like fatigue and anxiety and insomnia. So we need to utilize our time very nicely, balancing the screen time to the watching the nature. I mean to say कि जब हम अपने सारे दिन का टाइम यूटिलाइज करते हैं तो स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करके हमें दूसरी एक्टिविटीज में अपने टाइम को स्पेंड करने की जरूरत है। जैसे मैंने देखा कि बच्चों ने पोस्टर्स बनाए, पोएम्स लिखी, एंड ये सब कुछ एक्टिविटीज हमें करते रहना चाहिए। एंड मोस्टली नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी आंखों को सेफ रखने के लिए ग्रीनरीज को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। सो अगर हमें एक्सेस मिले तो ग्रीन एनवायरनमेंट में हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए हमें एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप, इन तीनों एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से बैलेंस करना चाहिए। सो द थर्ड वर्ड आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल ऑफ यू इज बैलेंस। टाइम मैनेजमेंट के साथ कि नींद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सारा दिन स्क्रीन का यूज करते हैं तो आंखों को बंद करके रात के अंधेरे में ली जाने वाली 6 to 8 आवर्स की नींद हम सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे जरूर अपनी नींद को फर्स्ट प्रेफरेंस दे, इम्पोर्टेंस दे, और नींद के साथ अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सिक्योर करें। दूसरा है वॉकिंग या एक्सरसाइज। तो आप सभी यंगस्टर्स हैं, आप बैठे बैठे काम करेंगे तो बहुत ज्यादा लेथार्जिक होते जाएंगे, इसलिए आपको अपनी जगह से उठकर वॉक करना चाहिए, या फोन जब आप आंसर करते हैं तब वॉक करते हुए फोन आंसर कर सकते हैं आप, और एक्सरसाइज करें। 15 मिनट्स का प्राणायाम बहुत जरूरी है मॉर्निंग में, एंड हाफ एन आवर की एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्टिविटी। और आप यंगस्टर्स हैं तो इसलिए आपको थोड़ी विगरस एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए ब्रेन बूस्टर और बॉडी के सारे सेल्स के बूस्टर का काम करेगा। एंड तीसरा एस्पेक्ट है डाइट। डाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन दिनों हमारे लिए। तो डाइट में हम ध्यान रखें कि 3 टाइम खाए, कोई मिस नहीं करे। कभी कभी ओबेसिटी के डर से या उसको कम करने के लिए हम डाइट मिस करते हैं, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है अगर हम ब्रेन एक्टिविटीज करते हैं तो प्रॉपर डाइट 3 टाइम का हम ले, और उसमें भी ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद का इस्तेमाल करें और अपना ध्यान रखें। तो फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए आपके इस फोरम में, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी को मिलकर और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा टाइम राइट वे में यूटिलाइज हुआ,
इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you so much, ma'am, for sharing your precious knowledge. The has shown possibility to conduct the World Mental Health Day. So may I invite the Vice President for the vote of thanks. Good afternoon, principal ma'am. Good afternoon, our guest. Good afternoon, teachers. Good afternoon, student. आप सब स्टूडेंट आज यहाँ प्रेजेंट हुए उसके लिए सबसे पहला तो आपको ही थैंक्स है कि आपकी वजह से ये प्रोग्राम जो है इतना सक्सेस हुआ. 80 to 82 की शायद मैंने देखा था कि इतने लोगों की प्रेजेंट है अभी. एंड स्पेशल थैंक टू मनीष सर की वजह से ही ये प्रोग्राम आगे तक पहुंचा, क्योंकि ये उन्हीं का ही आइडिया था कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए. एंड देन मैं थैंक्स बोलूँगा हमारी टीम को कि उन्होंने इतना अच्छे से किया, खास करके वीरा ज्योति हो गई और मोनिका. एंड देन आल्सो थैंक्स टू क्रिस सर जिनने इतना अच्छे से सेटअप किया हमारे जूम क्लासेस को सक्सेस करने के लिए, क्योंकि शायद हम लोग इस चीज में नए हैं और सर को एक्सपीरियंस है तो सर ने इस चीज में काफी हेल्प किया. एंड नेक्स्ट टू थैंक्स अवर पार्टिसिपेंट जिन्होंने वेरियस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट किया. हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए करते हैं. तो नेक्स्ट जो भी कंपटीशन होते हैं इस सब में आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप जितना हो सके उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, कंपटीशन में पार्ट लीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेस हुआ. बाय द वे वैसे ये प्रोग्राम काफी सक्सेस हुआ. थैंक यू टू ऑल. थैंक यू सो मच. Yes, so we are here ending our program. Anything to be say, Monica, Veera? Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, so everyone can leave. Thank you once again. Have a happy mental health day once again. Thank you. Thank you.